Good morning, students. How are you? Hope that you all are fine at your home in this COVID-19. So, students, let's start our topic, active and passive voice. Yesterday we have did simple present tense, and today we shall read about simple past tense and simple future tense. So, beta, please just see, if a sentence refers to simple past tense in active voice, then it change into past continuous in passive voice. Like, formula of simple past tense is subject plus second form of verb plus object. But when we change into passive voice, then object becomes the subject, and then we shall take was and were as a helping verb, then third form of the verb, then by and subject. So here are some examples. First is Pankaj threw the ball. Pankaj ने ball फेंकी. When we change it into passive voice, then the ball was thrown by Pankaj. बॉल पंकज के द्वारा फेंकी गई. बॉल जो था वो यहाँ पर आके क्या बन गया हमारे पास, सब्जेक्ट. Then we shall take a helping verb was as the ball is singular. Then third form of the verb threw is thrown by Pankaj. He cut trees. Again, trees became the subject. So the trees were cut by him. They kept us waiting. Then we were kept waiting by them. Us change into we, then plural. So we shall take a verb. We were kept, third form of the kept waiting by them. We did not grow rice. Then rice became the subject. Rice was not grown by us. They did not proclaim him king. King becomes the subject. Him became the subject. So he was not proclaimed king by, they change into them. The ball did not hit me on the head. Here me change into I. I was not hit on the head by the ball. What did he speak to you? What was spoken to you by him? What remains same word, then was spoken to you by him. Which picture did you see last night? Which picture was seen by you last night? When we change into passive voice, then what it remains? Which picture was seen by you last night? Did she run a great risk? Was a great risk run by her? Did the teacher punish the students? Were the students punished by the teacher? स्टूडेंट्स देखो बेटा, दो चीजें यहाँ पर आपके देखने की है. इफ अ सेंटेंस start with a did, interrogative form in active voice, then when you change into passive voice, which helping verb is used in place of did, was or were. So did she run a great risk, यहाँ पर did की जगह हमने क्या लिया, was a great risk run by her, और इधर क्या हो जाएगा, was the students punished by the teacher. Hope you understand this. Again, your homework is make 5 sentences in simple past tense, then change into passive voice. In interrogative forms also you shall take. Now, simple future tense. You all know that when a sentence refers to simple future tense, what is its formula? Subject plus will shall, then first form of the verb. But when you change it into passive voice, then what is the formula? Will shall plus be plus third form of the verb. Okay. So he will fly a kite. Again, a kite will be, and what is the third form of fly? Flown by him. They will run a race. A race will be run by them. She will not beat me. Here, me change into I. I shall not be beaten by her. They will punish the ticketless travelers. क्या हो जाएगा बेटा, ticketless traveler become the subject. Ticketless travelers will be punished by, they change into them. Everybody will blame us. Us किस में बदला, we shall be blamed by everybody. Her uncle will look after her. Her change into she. She will be looked after by her uncle. I shall not speak a word to you.
नॉट ए वर्ड विल बी स्पोकन, नॉट ए वर्ड, पहले लिया है नॉट, अ वर्ड विल बी स्पोकन टू यू बाय मी. These are the examples of future tense. Again, homework, make 5 sentences into simple future tense, then change it into passive voice. Now, here is a beta exercise for you. Hope you all are written in the. Hope you all are written it in your notebook and then solve it. It is a main homework for you. Hari drinks tea. Write it in your notebook. I am dictating. Hari drinks tea. First of all, you can identify the tense, then change it into passive voice. Second is, we admire the brave. We admire the brave. Third is, I respect my teachers. I respect my teachers. Fourth, cows eat grass daily. She expects good news. They took no notice of me. They elected him captain. God blessed him with a son. The servant washed our clothes. My father taught me a grammar. You will catch the first bus. I shall pay the bill for dinner. He will not turn you out. I will always keep my word. Her uncle will look after her. And we shall teach him a lesson. So this exercise should be solved by you and submit it on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9050840279. Or it is better if you shall send your homework at class 9th group. Okay students, take care. Good morning. Good morning 9th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we discussed about chapter number 12 and that is about the Herion's formula. Now we discuss in today's class chapter number 13, in which the first topic is cylinder. So first of all, what is cylinder? Cylinder is in which top and bottom is surface that are circles and the middle one is a straight line. Okay, now cylinder ke first of all, in this chapter first of all you have to write all the formulas and then start with solving the question. So now first question है इसमें cylinder. So cylinder का first of all कर्व surface area क्या होता है 2 पाई RH का टोटल सरफेस एरिया होता है वहाँ पे 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H एंड वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H. In all these we have to require the radius and height and then we calculate these questions. Now first of all given है the diameter of a cylinder is 28. So diameter है यहाँ पे 28. So we have to calculate first of all radius because formulas में हमें क्या required है radius. So radius होती है half of diameter, that will be equals to 14 centimeter. Now its height is 40 centimeter, that means height है यहाँ पे 40 centimeter. कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ से अब 2 पाई R और H. 2 पाई की वैल्यू जब तक मेंशन ना हो 3.14 तब तक आपको 22/7 ही लेनी है हमेशा. मल्टीप्लाई विद R हेयर इज 14 एंड हाइट इज 40. ओके, नाउ कैंसिल आउट यहाँ से 7 1 जा 7 7 2 जा 14. आंसर विल बी 88 मल्टीप्लाई विद 4 इज 352 एंड 0. ओके, और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्या निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स TSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H. 2 पाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई विद R हेयर इज 14 and then bracket R here is 14 and then height is 40. Now cancel out यहाँ से 7 1 जा 7 7 2 जा 12 44 88 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा यहाँ से 54. Now 54 will be multiplied to 88 is 8 4 जा 32 8 5 जा 40 and 3 2 3 4 2 5 7 4. So 4752 और सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन बिकॉज एरिया है यहाँ पे तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी. नाउ थर्ड क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा यहाँ से अब
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एंड एच। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर मीन्स आर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 14 विल बी मल्टीप्लाई टू 14 एंड देन हाइट इज 40। 7 1 7, 7 2 12, 44 मल्टीप्लाई विद 4 इज 176, 176 मल्टीप्लाई विद 14 इज, तो 14 6 is 84, 14 7 is 98 and plus 9 is 6, 1 14 1 and 2 4, okay, so 2464 and 0 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो सिलेंडर में तीनों टाइप्स मैंने करा दिए। अगर CS से निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, TS से निकालना हो तो दिस फॉर्मूला, एंड वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज अबाउट द डायरेक्ट मेथड कि अगर हमें सब कुछ गिवन है और हमें सीधा अप्लाई करना है फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कॉस्ट ₹3300 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, अंदर एक सिलेंड्रिकल वेसल है 10 मीटर डीप मतलब गहरा, मतलब उसकी हाइट गिवन है। उसको पेंट करने के लिए टोटल चार्ज कितना होता है, 3300 होता है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज है ₹30, और टोटल जो सरफेस एरिया है कर्व सरफेस एरिया उस पे हमारे पास ये गिवन है चार्ज। इन जनरल हमने यहाँ 8 तक क्लास तक पढ़ा है कि उसमें क्या होता था, 1 मीटर स्क्वायर पे गिवन होता था और हमें एरिया पे निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया नहीं गिवन, वो टोटल चार्ज गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है 30, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, एरिया से। एरिया हमें नहीं पता तो इसीलिए हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे। कर्व सरफेस एरिया क्यों लगा है, क्योंकि इनर कर्व सरफेस पे ही पेंट करा है, तो इसीलिए फॉर्मूला, और इक्वल होगा 3300 के, क्योंकि वो हमें निकालना होता था। तो फॉर्मूला क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, 1 मीटर स्क्वायर पे गिवन होता था और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे और आंसर आ जाता था। यहाँ पे क्या, वो एरिया गिवन नहीं है, उसको हम मल्टीप्लाई में फॉर्मूला में लिख देंगे और जो आंसर है वो उसको ये हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ फर्स्ट में क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स हमें यही निकालना है, तो इसको एज इट इज रखो यहाँ पे। और ये जो 30 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ गया 110, और ये क्या है यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। नाउ सेकंड में क्या पूछा है, इनर रेडियस, तो यहीं पे इसी फॉर्मूला में वो कर देंगे। सो 2πRH किसके इक्वल है, यहाँ से 110 के इक्वल। नाउ 2 मल्टीप्लाई विद 22/7, R वी हैव टू कैलकुलेट, एंड H हाइट जो डीप गिवन है, मतलब हाइट है वहाँ पे 10 मीटर इक्वल्स टू 110। ठीक है, नाउ R यहीं पे रहेगा 110, 7 here is in divide, so it will goes in multiplication in that side, and these are divide here. ठीक है, now 10 से 10 cancel out, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। नाउ क्या आंसर आ गया, 7/4 मीटर क्या आ गया यहाँ पे रेडियस आ गया। नाउ थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, यहाँ से कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम वो क्या है, इसकी शेप क्या है सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी हमने करा है पाई आर स्क्वायर और H। सो पाई मतलब 22/7, रेडियस है यहाँ पे 7/4, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 7/4, और मल्टीप्लाई विद हाइट हेयर इज 10। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 11, अगेन 2 2 जा एंड 2 5, कितना आ गया यहाँ से आंसर 35/4, एंड विच विल बी इक्वल्स टू 8.307 and 5, ओके, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे इसीलिए क्या आ गया 8.75 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम हेयर। सो यहाँ पे क्या है अब हमारे पास, एक सेकेंड, ओके सॉरी, 11 और वो रह गया था, तो 35 मल्टीप्लाई विद 11 इज 583, 385/4, and which will be equals to 4 9 36, 2 5 4 6 24 and 2 5. So that will be the answer. Okay, so here we have completed our revision of cylinder topic. In the next class we discuss about cone, its curved surface area, total surface area and volume. So that is all for today. Thank you. Good morning students. This video is for class 9th chemistry chapter 3rd atom and molecules. Students कल हमने पढ़ा था
मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, हमने कोई एटम लिया था और हमने कहा था किसी भी एटम जो है उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं या तो उसके मास के द्वारा या फिर उसके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है कितने उसमें उसके द्वारा। ठीक है, सो हमने कल पढ़ा था कि जो मोल कंसेप्ट में 1 मोल होता है वो इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि एक मोल में इतने एटम होते हैं। जैसे हमने बोला था 1 डजन, एक डजन में कितनी चीज़ें आती हैं 12, ऐसे ही एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ कि कौन से एटम के पास ज़्यादा नंबर ऑफ, मतलब कौन सा, उन्होंने कोई 2 एटम दे दिए और बोले कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अगर हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें, ठीक है, और हमें पता है कि 1 मोल इसके इक्वल होता है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। सो टुडे वी विल गो विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट। लेट्स हैव अ लुक, पेज नंबर 42, NCERT बुक केमिस्ट्री। ओके, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम्स। ओके, ये कह रहा है कि अगर एक मोल जो है वो 12 ग्राम के इक्वल है कार्बन का, व्हाट इज द मास इन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमें बताना है कि एक कार्बन के एटम का कितना मास होगा। यानी कि एक चीज़ तो हमें पता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स, कार्बन एटम मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। यानी कि एक मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन के, एक मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने होंगे, इसका मतलब किसमें कितने एटम होंगे कार्बन के, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि अगर 1 मोल, एक स्टेटमेंट ये तो हमें पता है कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। एक क्वेश्चन ने दिया है कि जो 1 मोल है वो वेट करता है कितने ग्राम, 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कितने को वेट करता है, 12 ग्राम को। तो एक स्टेटमेंट ये है कि इसके अकॉर्डिंग 1 मोल इसके इक्वल है, और क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 मोल 12 ग्राम के इक्वल है। जब दोनों ये मोल में है तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इतने कार्बन एटम में इतने ग्राम मास होगा, कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगी, इक्वल। सो लेट्स हैव अ लुक नाउ। हमें पता है एक मोल में इतने एटम होते हैं और एक मोल इसने क्वेश्चन में 12 ग्राम दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि इतने कार्बन एटम में कितने ग्राम मास होगा, 12 ग्राम। तो लिखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन हैव मास। कितना मास होगा, 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में इतने एटम होते हैं और क्वेश्चन ने 1 मोल में 12 ग्राम दिया है, तो इतने एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम, क्योंकि दोनों ही 1 मोल हैं। ओके, सो हमें निकालना कितना है कि 1 एटम ऑफ कार्बन कितना वेट करेगा। तो 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास कितना होगा, 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। हम करते थे ना, कोई आदमी 10 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 5 कितने दिन में करेंगे, तो कम के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड। क्या करते थे कम के लिए, डिवाइड। सो ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। यानी कि अगर 1 मोल में 12 ग्राम मास होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 12 ग्राम होगा, तो हमें पता है 1 मोल इसके इक्वल होता है, तो हम लिखा डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि इतने कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम। और हमें निकालना कितने का था, 1 एटम का, तो 1 एटम का कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 एंड ऑन डिवाइडिंग 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो 1 atom of carbon having mass of this value. I hope you clear. Have a look on this question and try to understand. If you having any problem with this question, you can contact me and you can tell me. Okay, now question number 2. Which has more number of atom
100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। गिवन एटॉमिक मास हमारे पास ये है और मोलर एटॉमिक मास हमें पता है इनके। ओके, जो मोलर होता है उसको हम ये वाला काउंट करते हैं और जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको ये वाला लिखते हैं। तो इसने पूछा है कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। अगर हमें निकालना है कि कौन से के ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, ज़्यादा। जैसे 1 मोल में इतने एटम होते हैं, तो मान लो इसके 4 मोल निकले तो 4 इसके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ से देखिए, तो पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ सोडियम। आंसर देखिए, एक तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम दिया है तो मोल ऑफ सोडियम निकालते हैं। पहले मोल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था कि मास ऑफ सोडियम, यानी कि इसको आप लिख सकते हो गिवन मास भी। क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन दिया है ये है, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोडियम, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोडियम। यानी कि मोलर मास कौन सा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उससे डबल या कुछ पॉइंट्स ज़्यादा होता है। तो ये वाला क्या होगा, सोडियम का मोलर मास होगा और ये आयरन का मोलर मास होगा, और ये किस में काउंट होंगे, गिवन मासेस में। सो मास ऑफ सोडियम या गिवन मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मोलर मास कितना है, 23 ग्राम। तो यहाँ से ऑन डिवाइडिंग 4.34 नंबर ऑफ मोल सोडियम के कितने मोल आ गए, 4.34। नाउ गो विद द आयरन, मोल्स ऑफ आयरन के कितने मोल्स होंगे, वही गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, 100 ग्राम ही है, 100 है ना आयरन का भी, 100 अपॉन में मोलर मास कितना होता है आयरन का, 56। सो डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 1.78। सो 100 ग्राम ऑफ सोडियम एटम और 100 ग्राम ऑफ आयरन एटम, तो सोडियम में कितने मोल निकल के आए, 4.34, और आयरन में कितने निकल के आए, 1.78। सो अब बताइए किसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, हमें क्या बताना था, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। सो जिसके मोल ज़्यादा है उसके एटम भी ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे यहाँ से देखो, अगर 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम उठते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 4.34 में कितने होंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे एक तो हम इससे मल्टीप्लाई करें, एक इस नंबर से करें, तो कौन से मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आएगा, बड़े नंबर से। सो हम क्या लिखेंगे, सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम because we find sodium number of moles in sodium is 4.34 and in iron 1.78। so जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उस एटम में उसके नंबर ऑफ एटम ही ज़्यादा होंगे। क्लियर है, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस एंड हैव ए लुक अगेन। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मोल ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ कंपाउंड, मोल ऑफ सोडियम, मास ऑफ द सोडियम अपॉन में मोलर मास ऑफ द सोडियम। जहाँ अगर हम एक सोडियम नहीं दिया तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जब कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका गिवन मास ऊपर लिखेंगे और मोलर मास नीचे हो, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Priya ma'am, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं कक्षा 9th में हिंदी ग्रामर पाठ 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वाक्य का स्वरूप, उसके बाद हमने पढ़ा वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, जिनमें हमने नाम पढ़े। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा, सामान्य कथन या किसी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति, अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य
कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। यानी जो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था बताए यानी कंडीशन बताए, उसको हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियां नृत्य कर रही है, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है। नंबर 2 है नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, जिसमें नहीं या न आता हो। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं न मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे वे बाजार गए, ये है सकारात्मक वाक्य, और वे बाजार नहीं गए, ये हमने सकारात्मक से क्या बना दिया, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य को ही हम निषेधवाची वाक्य कहते हैं। इसके अलावा भी हम नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं तो अब ये काम करने से रहा, तो इसका मतलब भी ये है कि नहीं करूँगा। इसमें नहीं का भावार्थ छुपा हुआ है, तो इस वाक्य को भी हम नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। और भी है इसमें एग्जाम्पल देखो, अब वह कहाँ मिलेगी। अब वह कहाँ मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, इसमें भी नकारात्मक वाक्य है। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। इसमें क्या है, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता हो, वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, इसमें वो ऑर्डर दे रहा है, निर्देश दे रहा है, निकल जाओ कमरे से बाहर, इसमें आज्ञा निर्देश का भाव आ रहा है। मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, इसमें वो प्रार्थना कर रहा है कि आप मेहरबानी करके बाहर बैठ जाइए। सारा सामान खरीद लाना, इसमें भी वो उसको निर्देश दे रहा है कि आप सारा सामान खरीद कर लाना। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य के। उसके बाद नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमसे कोई कुछ पूछ रहा हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों के निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। इनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द के आरंभ में आता है। जैसे क्या वह आगरा जा रही है, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ जा रही है या नहीं जा रही है। अन्य प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के बीच में आता है। जैसे आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं, इसमें आगे क्या नहीं लगा हुआ है, इसमें बीच में पूछा हुआ है कब जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पीछे। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, यह आज उसकी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से आज पैसे मिल जाए। आपकी यात्रा शुभ हो। नंबर 6 पे है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है। जैसे शायद आज बारिश हो, संदेह यानी डाउट, शायद आज हो मतलब श्योरिटी जिसमें ना हो। शायद हो सकता है आज धूप ना निकले, तो इसमें भी सिर्फ संदेह है। अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा, ये सब संदेह की भावना को प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य न होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है। तो इसको हम दूसरा नाम संदेहवाचक का क्या हो जाएगा, संभावनार्थक वाक्य। नंबर 7 पे है विस्मयादिबोधक या मनोवैज्ञात्मक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य,
घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। विस्मयादिबोधक जो है ये विस्मय, आश्चर्य या घृणा, प्रेम, हर्ष आदि को प्रकट करते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य है, ये भी आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। हाय मैं मर गया, ये इसमें हाय मैं मर गया वो परेशानी जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। सब गड़बड़ कर दिया, धत सब गड़बड़ कर दिया, तो धत इस शब्द के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, आप देख रहे हो, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और ये हमें आश्चर्य, घृणा या आदि के भाव हमें जो अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं वो विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। अब नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कह सकते हैं। शर्त यानी कोई भी कंडीशन, जैसे यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ये शर्त है, कंडीशन है कि यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। जो मतलब किसी शर्त का जो होते हैं शर्त वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में क्या होता है, किसी भी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, किसी न किसी शर्त का भावार्थ उसमें आता है। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य।